काफिर कोट का किला, क्या आपने ये नाम सुना है? मेरे सामने वो जो मकाम नज़र आ रहा है वो काफिर कोट का है। इसके बारे में क्या मालूमात हैं? काफिर कोट का किला कैसा था और आज वहाँ पे क्या पोजीशन है? आज ये मुकम्मल टूट फूट का शिकार है या बाकी है? कुछ इसका हिस्सा बाकी है जो कि यहाँ पे रोड से नज़र आता है। तो इसके बारे में जितनी भी मालूमात हैं हम आज आपको इस वीडियो में बताने लगे हैं, तो हमारे साथ Kafir Kot. Kafir Kot is an archaeological site in the Dera Ismail Khan district of Pakistan that has been given the status of cultural heritage. काफिर कोट पाकिस्तान के ज़िला डेरा इस्माइल खान में वाक़े एक आसार कदीमा मकाम है जिसको सकाफ़ती विरसे का दर्जा दिया गया है। Most of the Indus River is in the foothills of the mountains. On the tops of these hills, traces of ancient forts, places of worship, and ruined settlements are found on the banks of the river Indus. दरिया सिंध का बेशतर हिस्सा पहाड़ों के दामन में है। इन पहाड़ों की चोटियों पर दरिया सिंध के किनारे कदीमी किले, इबादत गाहें और तबाहशुदा बस्तियों के आसार मिलते हैं। ऐसे ही आसार डेरा इस्माइल खान शहर से 93 मील शुमाल की तरफ खैसोर पहाड़ की चोटियों पर हैं, जो काफिर कोट के नाम से मशहूर है। Similar monuments are located 93 miles north of the city of Dera Ismail Khan on the summit of Khaisor mountain known as Kafir Kot. At a distance of a few miles from here, the Kuram and Indus rivers are meet. यहाँ से चंद मील के फासले पर दरिया कुरम और सिंध आपस में मिलते हैं। किसी ज़माने में दरिया सिंध काफिर कोट के पहाड़ों के नीचे बहता था, जिस पहाड़ पर ये खंडर वाक़े हैं। Once upon a time, the river Indus flowed under the mountains of Kafir Kot. The mountain on which these ruins are located has a waterway on its eastern side. Today, the ruined ruins of Kafir Kot are covered with jagged rocks and thorn bushes. इसके मशरिक की जानिब आबी गुज़रगाह है। आज काफिर कोट के तबाहशुदा खंडर को नुकीले तराशीदा पत्थरों और खारदार झाड़ियों ने लपेट में ले रखा है। पहाड़ों की चोटी पर होने की वजह से ये आसार कदीमा अभी तक महफूज हैं। हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। Being on the top of the mountains, these archaeological sites are still preserved. Silence is silence everywhere. According to the scholar Muhammad Sharif, Muslims call this fort as Kafir Kot.
while Hindus call it Raja Bul's fort. दानिश्वर मोहम्मद शरीफ के मुताबिक मुसलमान इस कला को काफिर कोट के नाम से पुकारते हैं, जबकि हिंदू इसे राजा बल का किला कहते हैं। इन मंदिरों की तादाद 7 के लगभग है। खूबसूरत तराशीदा पत्थरों से तामीर किए गए ये मंदिर माजी में बहुत खूबसूरत और शानदार हैं, जो अजमत रफ्ता की शहादत देते हैं। The number of these temples is around 7. Built with beautifully carved stones, these temples were very beautifully in the past, testifying the greatness of the past. This ancient palace and temple was built by Raja Bul. Nand, a fort of the same chain, is located in a difficult hilly area. कदीमी दौर के ये महल और मंदिर राजा बल ने तामीर करवाए थे। इस सिलसिले का एक कला नंद एक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में वाक़ है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने 10वें हमला में राजा नंदपाल को शिकस्त दी थी। कयास यही है कि काफिर कोट का कला और मंदिर भी सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों बर्बाद हुए। Sultan Mahmud Ghaznavi defeated Raja Nandpal in his 10th attack. It is believed that the fort and temple of Kafir Kot were also destroyed by Sultan Mahmud Ghaznavi. There was also a water pond inside the fort of Kafir Kot. The rainwater was collected in the pond. There were also temples for puja pot around the pond. The remains or palaces and walls are still there today. The big temple is on the left. In the middle is the passage, which is part of the big building. काफिर कोट के कला के अंदर पानी का तालाब भी था। बारिश का पानी तालाब में इकट्ठा हो जाता था। तालाब के गिरदोनवाह में पूजा पाठ के लिए मंदिर भी थे। महलात और फसील के आसार आज भी मौजूद हैं। बड़ा मंदिर बाएं हाथ पर है। दरमियान में रास्ता है जो बड़ी इमारत का हिस्सा है। There are also traces of a prison. The Kafir Kot ruins are surrounded by high mountains and deep ravines on 3 sides, while on the east side is a waterway. In the past, forts or palaces of rulers were built on the mountains to protect them from enemies and invaders. The temples of Kafir Kot are decorated with beautiful designs by skilled artisans. जेल खाना जात के आसार आज भी पाए जाते हैं। काफिर कोट के खंडार के 3 अतराफ बुलंदो बाला पहाड़ और गहरी खाइयां हैं, जबकि मशरक की तरफ आबी गुजरगाह है। माजी में किले या हुक्मरानों के महल पहाड़ों पर तामीर किए जाते थे ताकि वो दुश्मनों और हमला आवरों से महफूज रह सकें। Niches are also made for idols and lighting. There are traces of an ancient road to climb the hill. These 4 big, 3 small temples are built by mixing the local limestone conjure. These stones are not affected by weather or rain. These temples are conical in shape. Their outer surface is slightly more ornate
This decoration is very intricate and delicate with sunflower flowers woven on it. All these temples are inside the ruined fort. काफिर कोट के मंदिरों के चार अतराफ माहिर कारीगरों ने खूबसूरत डिज़ाइन बनाए हैं। मूर्तियों और रोशनी के लिए ताकचे भी बनाए गए हैं। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए पुराने ज़माने में एक सड़क के आसार भी पाए जाते हैं। 4 बड़े 3 छोटे ये मंदिर चूने के मकामी पत्थर कंजोर की आमेजिश से बनाए गए हैं। मौसम या बारिश का असर इन पत्थरों पर नहीं होता। ये मंदिर मखरूती शक्ल के हैं। इनकी बैरूनी सतह कुछ ज़्यादा मुज़य्यन है। ये आराइश बहुत पेचीदा और बारीक है। इस पर सूरजमुखी के फूल बने हुए हैं। This fort is built in a defensively safe palace. The city of Kafir Kot was surrounded by a strong stone wall with defensive front. It is said that there was the rule of Hindu king Bil, whose throne was Belat. This is called a Bil Kot or Bilot. Bill's younger brother was the founder of Tal Ot. The third brother was Al Kot, who was the founder of Accra near Banu. The city of Accra was lush and prosperous, which was destroyed by Sultan Mahmud Ghazni. ये तमाम मंदिर तबाहशुदा किले के अंदर है। ये किला दिफाई लिहाज से महफूज मकाम पर बनाया गया है। काफिर कोट शहर के इर्द गिर्द पत्थर की मजबूत फसील थी, जिसमें हिफाजती मोर्चे बनाए गए थे। कहा जाता है कि यहाँ हिंदू राजा बल की हुकूमत थी, जिसका पाया तख्त बिलोट था। उसे बलकोट या बिलोट कहा जाता था। बल का छोटा भाई टलओट का बानी था। तीसरा भाई अकलोट था, जो बन्नू के नजदीक वाक़ आकरा का बानी था। आकरा का शहर सरसब्ज व शादाब और खुशहाल था, जो सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों तबाह हुआ। आदिया देवी मार के बोतला सही दम आदिया दे